Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah khair to everybody, and especially to the author, Sister Aisha, for inviting me on this platform. My name is Iram Shaukat, and I go by the name Iram bin Safiya. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ کافی کریٹیو ہیں اس چیٹ گروپ میں، اور everybody loves to read, everybody likes to write. Of course, it's an author's book club, so definitely we are fans of Sister Aisha. مجھے آج انوائٹ کیا گیا بات کرنے کے لیے on the topic of ارلی چائلڈہڈ لٹریسی. اب میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کہ مطلب میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایز اے ہوم اسکولر میرا یہ بلیف ہے کہ any parent can talk about child literacy. And the reason that any parent can talk about it is because any parent knows their child the best. تو جب بچہ ہماری 6 months کا ہوتا ہے، گود میں ہوتا ہے، شروع دن سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو اس بچے کی بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو if you are a parent, then congratulations, you're already a teacher, because Allah subhanahu wa ta'ala gave us that status. Alhamdulillah. اب آتے ہیں ارلی چائلڈہڈ لٹریسی پہ. یہ ہے کیا؟ یہ ہمارا سیکھنے کا اور سکھانے کا ایک طریقہ ہے. لکھنا پڑھنا سیکھنا. قرآن میں سب سے پہلا جو ہمیں حکم آیا وہ تھا اقرا، ریڈ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں آتا پڑھنا، رائٹ، مجھے نہیں آتا پڑھنا. اور قرآن کا موضوع ہی یہ تھا کہ وہ تمام زمانوں کے لیے ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو ریڈ کرو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو. تو ریڈنگ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از سپریٹ فرام آور دین، یا ہمارے کانسیپٹ سے، ہمارے روزمرہ کے کانسیپٹ سے سپریٹ نہیں ہے، رائٹ. ریڈنگ از ناٹ اے سپریٹ کانسیپٹ. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو اپنی نماز صلاح اپنے روزوں سے سپریٹلی جا کے کرنی پڑتی ہے. ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے فجر کے بعد قرآن پڑھو، یا قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ رکھو. یہ میں پیرنٹس کے لیے بات کر رہی ہوں. مجھے پتا ہے کہ میرا ٹاپک ارلی چائلڈہڈ لٹریسی ہے، لیکن صرف ایک فاؤنڈیشن تیار کر رہی ہوں کہ ریڈنگ بچوں سے پہلے کس میں ہونی چاہیے؟ پیرنٹ میں ہونی چاہیے. اب ہاں، ہمارے اسکول سسٹمز ایسے ہیں، یا ہم ایسے ماحول میں میجورٹی آف اس، میں سب کی بات نہیں کروں گی بیکاز دیر آر ونڈرفل رائٹرز لائک سسٹر عائشہ ہر سیلف، لائک دیر آر سو مینی رائٹرز جو بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی، یا ایٹ سم پوائنٹ دے ہیڈ اے ونڈرفل پیرنٹ اور اے گرینڈ پیرنٹ، یا کوئی ان کے ٹیچر تھے جنہوں نے ان کی رائٹنگ کو انکریج کیا، جنہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ میں یہ اسپرٹ ہے، آپ لکھو اور لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ. اینڈ دیٹس ہاؤ دے ڈیولپڈ دیٹ اسکل. تو ریڈنگ اسکلز جو ہوتے ہیں وہ 6 مہینے کی عمر سے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، میں ایک پوائنٹر ساتھ میں دینا چاہوں گی، اور یہ نا ایک جو میری کانورزیشن ہے، یا جو میں آپ سے آج بات کر رہی ہوں، اور جس پلیٹ فارم پہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ بات ہے ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے مینٹلی ہیلتھی ہیں اور فزیکلی ہیلتھی ہیں. ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں. اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ سرٹن چیزیں ہوں گی بچے میں تو وہ اسمارٹ ہے. نہیں، لرننگ ہیپنز ود ایوری کائنڈ آف برین سیٹ. ہمیں اپنے ٹولز اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، صحیح ٹولز جمع کرنے ہوتے ہیں، جس سے کہ ہم اپنے بچوں میں لرننگ انکورپوریٹ کر سکیں یا ان میں انسٹل کر سکیں. میں شروع کرتی ہوں لرننگ. میں نے پہلی بات شروع کی قرآن سے کہ یہ ایز این اڈلٹ ہماری ذمہ داری ہے. تو جب ایک بچہ گود میں ہوتا ہے، یا ایون جب مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں، تو سائنس نے یہ بھی بات پروف کی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سن رہا ہے. اگر ماں ایک کانسٹنٹ ریڈر ہے، ریسائٹر ہے قرآن کی بکس کی، جو وہ پڑھ رہی ہے، جو وہ لکھ رہی ہے، رائٹر ہے، جو وہ لکھ رہی ہے، جو وہ سوچ رہی ہے، جو وہ بول رہی ہے، وہ بچے کے اندر جذب ہو رہا ہے، رائٹ. اور جو ان کا ارد گرد کا ماحول ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کو اچھا سوچنا چاہیے، اچھا بولنا چاہیے، اچھا دیکھنا چاہیے، اچھا پڑھنا چاہیے، کیونکہ that all is emotionally being transcended towards the child. پھر آپ کے جینز ہوتے ہیں. definitely if you are a writer and a reader, then there is a high probability کہ وہ چیز بچوں میں بھی آئے گی، right. اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں بچے کے ڈیولپمنٹل سٹیجز پہ. جب بچہ جو ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹل سٹیج پر ہوتا ہے، اور آپ کو جی ایک بک بتا رہی ہے، یا آپ کو ایک چیک لسٹ ملی ہوئی ہے. 3 سال کی عمر میں بچہ رول کرے گا، 3 منتھ کی عمر میں بچہ رول کرے گا، 6 منتھ کی عمر میں بچہ بیٹھنا شروع کر دے گا، 9 منتھ کی عمر میں بچہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دے گا. Now for a mother, for a first time or for a second time or any time for that matter,
इफ़ यू नो दोज मार्कर्स, आप देख क्या रहे होते हो, आप चाह रहे होते हो कि ठीक है ये सारे मार्कर्स जो है ना ये मेरे बच्चे में पूरे 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 होते चले जाएं. ऑब्वियसली हमें समझाया ये गया, हमारा माशरा हमें ये कहता है, हमारी अक्ल हमें ये कहती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन सपोजली एक मदर है जो देखती है कि 3 महीने की एज में बच्चा रोल नहीं कर रहा या 6 महीने की एज में बच्चा बैठ नहीं रहा, तो आप उसे कहो कि भाई मार्कर के हिसाब से बेटा जी अब तो आपको चलना शुरू कर देना चाहिए, खड़े हो जाओ. क्या वो बच्चा खड़ा हो सकता है? नहीं. क्या वो बच्चा अंडरस्टैंड भी कर सकता है कि आप क्या कह रहे हो? नहीं. जो उसमें उस वक्त एबिलिटी डेवलप नहीं हुई वो आप उससे ज़बरदस्ती करवा नहीं सकते हो. तो उसका नतीजा क्या होगा, आप ये समझोगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई पेरेंटिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई चाइल्ड, एंड देयर इज दिस होल सेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. होल्ड करते हैं, इधर ही पॉज कर देते हैं, पॉज का बटन दबा देते हैं. ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मेंटल स्टेट से निकल के पूछते हैं मैं बेहतर क्या सीख सकती हूँ. कर नहीं सकती, पहले सीखेंगे तो फिर करेंगे, क्योंकि हमें एज अ पेरेंट लगता है कि हम इन चार्ज हैं. ये जो हमारा कंट्रोल है ना कि एज अ पेरेंट आई एम इन चार्ज, आई एम इन कंट्रोल, और फिर डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट में हम छोड़ देते हैं अपना कंट्रोल, कहते हैं आई एम नॉट इन चार्ज, आई एम नॉट इन कंट्रोल, बट योर डिसअपॉइंटमेंट स्टेज देयर. सो इमोशनल शिफ्ट की ज़रूरत है. इमोशनल शिफ्ट हम करते हैं और हम कहते हैं हमारा ये मार्कर्स हमारे और हमारे बच्चे के पूरे नहीं हुए. हाउ और व्हाट इज इट दैट आई कैन कम टू इट, मतलब हम किस तरह से ये अचीव कर सकते हैं. और फिर उसके लिए एज मदर्स आई कैन गारंटी दैट ईच वन ऑफ यू एज अ पेरेंट हैव डन दिस एट सम पॉइंट और द अदर वेयर यू हैव सेड दिस इज द प्रॉब्लम, वी नीड अ सोल्यूशन, लेट्स वर्क ऑन problem based solutions, right? कि ये problem है, अब इसको हमने solve कैसे करना है. As mothers, we are intrinsically wired to solve problems. And sometimes a problem is not even a problem. It's just a way you think or you look at something. कि मेरे बच्चे ने इस स्टेज पे ये काम कर क्यों नहीं लिया, because दुनिया के आधे मिलियन बच्चे ये काम कर रहे हैं. लेकिन हमारा दीन हमें शुक्र सिखाता है कि शुक्र करो कि ये नहीं तो वो है आपके पास, ऐसा नहीं तो वैसा है. शुक्र सिर्फ इसी बात का कि हमारे पास ये सोच है कि हमें शुक्र करना है और हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका देखना है. सॉरी फॉर द ट्रांसफर, फॉर द साइड ट्रैकिंग, कमिंग बैक. तो बच्चे की बात हो रही थी. नाउ अब आपकी ये मैंने बात बेस मैंने बनाई इसलिए कि बिल्कुल इसी तरह से रीडिंग है और राइटिंग है हमारे बच्चों के लिए. ठीक, बिल्कुल इसी तरह से हमारे बच्चों के लिए रीडिंग है और राइटिंग है. कि अगर हमने बच्चे की बेस ही नहीं बनाई है, या अगर हमें पता ही नहीं कि बच्चे की बेस बनानी कैसे है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 6 साल का बच्चा जो है वो जो करिकुलम में एक बुक दी हुई है वो फर पढ़ना शुरू करता है. भाई उसकी बेस नहीं है, उसकी बेस बनाओ. फिर मेरे बच्चे की बेस बनी क्यों नहीं है, ये किसका कसूर है? ये किसी का कसूर नहीं है. एवरी चाइल्ड इज वायर्ड डिफरेंटली. साइंस ने बार बार ये बात प्रूव की है कि हमारा दिमाग मुख्तलिफ तरीके से सोचता है. अच्छा, बड़ी मजे की बात है, किंडरगार्टन में आप देखेंगे कि लड़कियां रीडिंग ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेती हैं लड़कों से. अब ये मैं जेनेरिक कह रही हूँ, मैं जरूरी नहीं है कि बिल्कुल यही है 100%. आई एम जस्ट सेइंग साइंस बेस्ड फैक्ट्स कि जब एक 5 साल के लड़के की ब्रेन को स्कैन किया गया और लड़की की ब्रेन को स्कैन किया गया, सो इट इज साइंटिफिकली प्रूवन सुब्हानअल्लाह कि जो लड़कियां हैं वो दे ग्रास्प ऑन देयर रीडिंग स्किल्स अर्लियर देन द बॉयज. Men, as we know, are more visual learners. They take more time to read. बहुत कम होता है या इतना ज़्यादा नहीं होता कि लड़के बुक्स एंजॉय करें. लड़कियां ऑन दी अदर हैंड बुक्स ज़्यादा एंजॉय करती हैं. लड़कियां बातें भी जल्दी करना सीखती हैं. यूजुअली हाँ कहा जाता है कि लड़की जो है वो जल्दी बोलना सीख लेती हैं. इट्स बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ वायर्ड देम लाइक दैट, राइट? तो बात कर रहे हैं बेस बनाने की. अब बेस किस तरह से बनानी है? ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि स्टेजेस ये हैं. लिखना, प्री स्कूलर्स को हम क्या सिखाते हैं? लिखना सिखाते हैं. अब मेरा मकसद ये नहीं कि बच्चे को ज़बरदस्ती पेंसिल पेपर पकड़ के उसको डॉट 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 करके बोलो कि अब ये तुमने 100 टाइम्स तुमने लिखना ही है. मैं उस तरह के लिखने की बात नहीं करी. वो एक स्किल है. रेपिटेशन में कोई मज़ायक़ा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन रेपिटेशन स्मार्टली एंड इंटेलिजेंटली विदाउट प्रेशराइजिंग द चाइल्ड इज़ मच बेटर, राइट? और सिर्फ पेंसिल और पेपर ही लिखना नहीं होता. आप सैंड के ऊपर भी लिख सकते हैं. आप क्या कहते हैं, डिफरेंट तरह के पाउडर्स ले सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं. आप पेन से कर सकते हैं, आप फिंगर पेंटिंग से कर सकते हैं. यू कैन ब्रिंग जॉय टू लर्निंग. एज पेरेंट्स जो हमारा सीखने का सबसे बड़ा काम ये है. अच्छा, ये अब किसी भी पेरेंट के लिए, चाहे वो होम स्कूलर है, चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम में बच्चा जा रहा है, क्योंकि बच्चे की पहली जो दरसगाह है वो आपकी गोद है, आपका घर है, आपकी 4 दीवारी है, राइट? अगर आपने अपने बच्चे को
شروع سے ہی بچپن سے ہی حب دیا ہے نا سیکھنے کا چیزیں ایکسائٹمنٹ کا کہ ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں, تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو لانگ ٹرم بہت ہیلپ کرتا ہے. تو آپ ان کے ساتھ جاٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس میں وہ لکھ رہے ہیں, جس میں وہ سینڈ پہ لکھ رہے ہیں, جس پہ وہ کلے سے لکھ رہے ہیں, جس پہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں پینٹ سے لکھ رہے ہیں, جس پہ وہ بلاکس لے کے الفابیٹس بنا رہے ہیں. دیٹ از آل لرننگ, لائک دیٹ از آل پلئنگ فار دیم, اٹ از پلئنگ بٹ دیٹ از آلسو لرننگ ایٹ دا سیم ٹائم. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, پھر جو 5 سے 8 سال کا بچہ ہے جو فر بولتا ہے ماشاء اللہ, جو اتنی ساری کہانیاں سناتا ہے, اب اس بات کو دھیان میں رکھیں اور ہمیں یہ بات سوچنی بھی چاہیے کہ وہ بچہ بول بہت اچھا سکتا ہے, اپنی بات کنوے بہت اچھی کر سکتا ہے, لیکن اگر اسے ٹیچر بولے کہ کلاس میں بیٹھ کے تم نے 5 sentences on myself لکھنے ہیں, اب اسی بچے کو, یہ آپ اپنے گھر میں ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. If you have children between the ages of 3 and 8 and they are very good visual storytellers, if they can tell stories well, ask them, stand up and or sit down and write exactly the story that you are telling me. You will see this for a matter of fact کہ between the ages of 5 to 8 those children ان کی story up to وہ پار نہیں ہوگی, ان کی oral story جو ہے وہ بہت بہتر ہے ان کی written story سے. یہ ایک developmental چیز ہے, اس میں کچھ برائی نہیں ہے. This is just the way it is because children, we as human beings learn to speak before. ایسا کیوں ہے کہ بچہ جو ہے وہ آبا تالا سا سے شروع کرتا ہے اور بہت ساری باتیں پہلے سیکھ لیتا ہے اور رائٹنگ بہت بعد میں آتی ہے, ٹھیک. پھر اس کے بعد ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس وقت اپنے بچے کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی چاہیے. پارٹنرشپ کیسے کرنی چاہیے؟ پارٹنرشپ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے ٹائم دیں, اس کے ساتھ بیٹھیں اور اسے کہیں چلو لیٹس رائٹ اباؤٹ ہاؤ یو اسپینڈ دا ڈے ٹو ڈے, ٹھیک. اب بچے سے آپ پہلے پوچھ سکتے ہیں کہ بچہ ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ دا ڈے ٹو ڈے, اور آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور وہ اس کو کہیں کہ لکھو, اور پھر اس کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں, اچھا کیا لکھنا چاہتے ہو, کیسے چاہ رہے ہو. اب پلیز ایک چیز میں بار بار کہوں گی کہ پیشنس ہونا انتہائی ضروری ہے. اف یو ڈونٹ ہیو پیشنس, nothing is going to come like this. It's not a McDonald's, it's not a Burger King, it's not a fast food truck. Learning is never a fast food sort of a thing. آپ اگر humble اور patient نہیں ہیں تو نہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, نہ آپ بچے کو کچھ سکھا رہے ہیں, اور انفیکٹ آپ نے پورے پروسیس کو انورٹ کر دیا, آپ نے بچے کو انتہائی اینکشیس کر دیا, اس کے اندر انگزائٹی بھر دی, ابھی لکھو ابھی لکھو ابھی لکھو, جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. جلدی کس بات کی ہے؟ اگر آپ کے پاس 10 کام ہیں کرنے والے تو پھر پرائیورٹائز کر لیں, ایز اے پیرنٹ پرائیورٹائز کر لیں کہ اگر یہ کام 1 گھنٹے کے بعد ہوگا تو کیا کوئی فرق پڑ جائے گا. کمیونیکیٹ کر لیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اپنے کسی بھی ارجنٹ میٹر کے ساتھ, اپنے فونس کو سوئچ آف کر دیں. ٹیل پیپل آئی ایم ناٹ اویلیبل فرام دس ٹائم ٹو دس ٹائم so that you can concentrate on your child. بڑی مزے کی بات ہے, اور یہ میں سائڈ ٹریک کر رہی ہوں پر یہ ضروری ہے, کیونکہ جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ پارٹنر کریں اور ان کے ساتھ لکھیں اور ان کے ساتھ بات کریں, تو 80% of us don't even have this patience کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں, because that's not important. گھر کا فلانا کام امپورٹنٹ ہے, اور وہ والا مہمان آ رہا ہے, اور وہ والا جا رہا ہے, اور یہ کرنے والا ہے, اور وہ کرنے والا ہے. ہمیں نا اپنی پرائیورٹائزنگ اسکلس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ کہیں کہ جی میں اپنے بچے کو بیسٹ آف دا بیسٹ دینا چاہتی ہوں, but then you don't do anything about it. And when you want to do it, and when you sit next to the child to do it, you're so frustrated by the things that you want to do and you think you should be doing, اور اس کا سارا ملبہ گرتا کس پہ ہے؟ بیچارے بچے پہ. 2 چپیڑیں ادھر, غصہ ادھر, یلنگ وہاں. بچے نے لکھنا کیا ہے؟ بچے نے کیا کہنا ہے؟ How did I spend my day? I spend my day in the fear of my mother yelling at me. وہ نہیں لکھ سکتا, لیکن وہ سوچے گا ضرور اور وہ انٹرنلائز ضرور کر لے گی اس بات کو. خیر, sorry again for the side track. I think these are important pointers because when we want to learn something, we have to understand that we have to unlearn a few things. And as a homeschooler, میں نے یہ بات first hand سیکھی اور مجھے بہت ٹائم لگا, اور میں جب بھی بات کرتی ہوں میں کہتی ہوں, اور میرا جو پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ ہے, it is my website and my talks are mostly based on us parents rather than what should you tell the child to do. It's more than what should you talk about with yourself. Khair, sorry about that. جب آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ رائٹنگ شروع کی, تو آپ نے اپنے بچے کو آہستہ آہستہ اسکل دینا شروع کیا. کس چیز کا اسکل دیا آپ نے؟ آپ نے اس کو اسکل دیا کہ آپ بات کرو, کیونکہ ان کی اورل
अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई है, लेकिन जब वो राइटिंग पे आते हैं तो वो डेवलपमेंटली उस स्टेज पे नहीं है जब कि उनके पास वोकैबुलरी के बहुत अच्छे वर्ड्स हों या ग्रामेटिकली वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हों उन कनेक्शंस को बनाने के लिए. सो यू हेल्प देम देयर, राइट. और ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको. आप बेसिकली बच्चे की ट्रांसक्रिप्शन स्किल को बेहतर कर रहे हैं उनके साथ बैठ के, उनके साथ इस चीज़ को पार्टनर करके. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग राइटिंग स्किल है जो प्री स्कूलर से शुरू होता है और जो एटलीस्ट 10 ईयर्स की एज तक जाता है, 12 ईयर्स की एज तक भी जाता है. 12 ईयर चाइल्ड देखने में शायद अडल्ट ऑलमोस्ट लगना शुरू हो जाए, स्पेशली लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली उस पार में हों. ओके, तो कुछ बहुत जेनेरिक सी बातें जो मैंने अपने डिफरेंट लेक्चर्स से सीखी और पढ़ी और मैं अब उसके बारे में आती हूँ. Making a reader. If you are a person who wants your child to read, then there are certain things that you need to do. And what are those things? Of course, you have to have books around, you have to have literature around you. आपके घर में ढेर सारी, मतलब आपके घर में बच्चा 6 महीने की उम्र से बुक्स से वाकिफ़ हो, मुतारफ़ हो, उसको पता हो कि ये एक चीज़ है, ये कोई चीज़ है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे खुलती है, इसका फ्रंट है, इसमें कलर्स हैं, इसमें टेक्सचर्स हैं. वो बच्चा जो है उन चीज़ों को हाथ लगा रहा है. अब आप देख रहे हैं कि प्रिंट भी है, ठीक है. यही किताब एक 6 महीने के बच्चे के लिए ऐसे है जैसे कि ये करना, ठीक है, लेकिन यही किताब एक 3 साल के बच्चे के लिए, एक 2.5 साल के बच्चे के लिए, एक 4 साल के बच्चे के लिए, एक 5 साल के बच्चे के लिए, बिलीव मी, एक 6 साल के बच्चे के लिए भी ये किताब है. उसकी वजह यह है कि हर बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो डिफरेंट है. दे आर रीडिंग, दे आर लुकिंग एट पिक्चर्स, दे आर मेकिंग कनेक्शंस. दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज रेड, अच्छा फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये डिफरेंट लैंग्वेज है, ये अरबिक में बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है. फिर वो आगे जाते हैं. फिर उसके बाद फोनिक्स वाली बुक आ जाती है. अच्छा, फोनिक्स पे मुझे बात करनी है, लेकिन ये मैं बुक्स दिखाने के बाद, आई एम नॉट सेइंग दैट बाय दीज बुक्स, ये सिर्फ मेरे बच्चों की किताबें पढ़ी हुई थी जो मैंने सोचा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा सकती हूँ. And then, you know, this is one of the phonic kind books like Cat in the Hat by Dr. Seuss, like 10 apples on the top. अब जब बच्चा वहां से निकलता है तो फिर आता है 3 3 3, I see. You can do 3, but I can do more. You have 3, but I have 4. Do you understand? Like there's a way of presenting rhymes. Make reading fun. मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ. And it's a sad example. It's not like a happy example. अगर आप लोग मेरी तरह बड़े ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में गए हैं, जो कि गए होंगे यकीनन, तो हमें ना किंडरगार्टन से पहले, प्री के से हमें शुरू करते हैं, किंडरगार्टन में हमें शुरू करते हैं 22 सेट्स ऑफ सिलेबल्स होते हैं. एड फेड नेड, एड सेट टू नेड सेट ऑन द बेड, राइट. ये है, डेफिनेटली है, ये सिखाया जाता है. लेकिन हमें हमारे सिस्टम में ये सिखाया जाता है कि आपने ये इसका रट्टा लगाना है. अब तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नहीं ख्याल के स्कूल्स में सिखाया जाता है, लेकिन हमारे टाइम पे ये सिखाया जाता था. एंड इट वाज डेट्रीमेंटल, डेथ थी वो to any child's reading capacity and capability, because a 4-year child or 5-year-old child हिफ्स तो कर लेगा उसको एड फेड नेड को, लेकिन are they literally understanding to love to read? मुझे एड से और नेड से और फेड से बड़े अरसे तक नफरत रही, because it was so bad. Khair, coming back to the point, the kids should be excited, the children should be excited to read. उनमें आप उनको नाइट टाइम स्टोरी सुना रहे हैं, आप उनको बेड टाइम स्टोरी सुना रहे हैं, आप उनको लंच टाइम स्टोरी सुना रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं खुदा के लिए चुप कर जाओ, बस हो गई स्टोरीज. ये भी एक फैक्ट है हमारी लाइफ का, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज they should be around literature a lot. चाहे वो बुक्स सिर्फ पढ़ी हुई हैं, चाहे वो बुक्स आप पढ़ रहे हो, चाहे वो बुक्स आप उनको पढ़ के सुना रहे हैं. अच्छा, मैं कहती हूँ कि 3 साल का लड़कों की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, बिकॉज या कहते हैं कि भाई उनका अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा है. अब हम क्या करें जी, बच्चे का अटेंशन स्पैन थोड़ा है, आप कह रहे हैं जी उनको रीड करके सुनाओ, वो तो पहले पेज के बाद भाग जाते हैं. तो कोई बात नहीं, वो पहले पेज के बाद भाग जाते हैं. ये किसने कहा कि पूरी किताब आज ही बैठ के पढ़ के सुना देनी है? पहले पेज सुना दो बस, ठीक है, भाग गया ना बच्चा, कोई बात नहीं. कुछ और करते हुए जब वो खेल रहा है, या आपने उसको कोई टॉयज की एक्टिविटी दी है, या आपने उसको कोई और किसी किस्म के मैनिपुलेटिव्स दिए हुए हैं खेलने के लिए, तो उस वक्त आप फिर वो सेकंड पेज पढ़ लो, पूरी बुक नहीं पढ़ो, सिर्फ सेकंड पेज पढ़ो. फिर अगले दिन आप बोलो यार तुम्हें याद है कल मैंने वो स्टोरी शुरू की थी. बच्चा थोड़ी सी अटेंशन जरूर देगा आपको. हाँ मामा ये हुआ था,
if the child says हाँ मामा उसमें ये हुआ था, congratulations, आपके बच्चे ने attention pay की है, वो सिर्फ एक जगह पे बैठा हुआ नहीं था, but the person, it stuck with them, they heard it, they know it, right? So you continue the story like this. That's what I say, that you have to unlearn a certain way. सिर्फ कुर्सी टेबल पे बैठ के learning नहीं होती है. It happens in many ways. Okay, if I'm dragging a lot, Sister Aisha, please do let me know how many minutes it has been, because I don't have a timer and I don't want to bore the audience. ठीक है. उसके अलावा मैंने कहा कि अच्छा अगर बच्चों को उनका ना मिजाज होता है, एक स्टेज होती है बच्चों को फेरी टेल्स एंड किंग्स एंड क्वींस एंड मैजिक एंड ये सब कुछ पसंद होता है, जज़ाकल्लाह खैर. तो if they like all of that, and that is a stage from 2 years until 8 years until sometimes 10 years, वो stage रहती है when they are in this fairy tale world where everything is magical, where everything is possible. ये stage कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए. वैसे इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को पता क्या कहते हैं, हम अपने बच्चे को कहते हैं हाँ अच्छा, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. ये जो रियलिटी का लफ्ज़ हम अपने बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं और उसे बोर कर देते हैं ना, ये हमें करना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी सोचना चाहिए पॉसिबल सब कुछ है, अल्लाह की ज़ात है करने वाली, क्या नहीं पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर आप नाइट टाइम स्टोरीज रीड करें, अब जाहिर सी बात है अब डे टाइम के हिसाब से आप अपनी बुक्स भी डिसाइड करेंगे. अब रात के वक्त आप उसको स्पाइडरमैन सुनाना शुरू कर दें जो जंपें लगा रहा है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे, तो आई थिंक दैट्स नॉट गोइंग टू पुट देम टू स्लीप. सो यू चूज योर स्टोरीज paced well upon the time that you are using it, right? ये भी एक बहुत ज़रूरी तरीका है. फिर then you give gifts to your children, you give gifts as books, you ask other people कि अगर आपने गिफ्ट देना है, for example अपने बहन भाइयों को कह सकते हैं या कि आपने अपने नीस और नेफ्यू को अगर कोई गिफ्ट देना ही है तो प्लीज़ आप उसको बुक्स दे दें, and then you suggest the books. Okay, I have talked about this earlier in some other program where I say कि खुदारा हर बुक चूंकि वो शाइनी कवर में और चूंकि वो पिंक है और चूंकि वो ब्लू है, आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं. And I'm staunchly against books that have moral stories that are embedded with things that are against our deen, against our religion. ठीक, मुझे प्रॉब्लम नहीं है डिज्नी से, ना ही मुझे प्रॉब्लम है डिज्नी बुक से, ना ही मुझे प्रॉब्लम है कि हर डिज्नी बुक से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ से मुझे प्रॉब्लम है और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को बड़ी छोटी एज में सिखा रहे हैं कि माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करो, माँ बाप की बात ना मानो, माँ बाप को कुछ नहीं पता, कोई अकल नहीं है, बहन भाई. और ये थीम्स हैं. आज अगर आप जाके गूगल करके 3 फेमस रीडिंग बुक्स दैट आर वेरी पॉपुलर अमंगस्ट एन एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कर लो, do it after my talk, do it and read the context and it will tell you. या फिजिकली कोई बुक पकड़ के देखें, क्योंकि जब आप वो उसमें पढ़ते हैं उसमें तो सब कुछ अच्छा ही लिखा होता है, लेकिन there are sublime messages. क्यों हमारे बच्चे जो आपस में बहन भाई होते हैं एक दूसरे को हमेशा बुरा भला ही कह रहे होते हैं? Because of the books that they are reading. सारी reason वही नहीं है, लेकिन there is a very particular message in almost all the books. वो लड़का शुरू करता है अपनी स्टोरी, वो लड़की शुरू करती है मुझे मेरे भाई से शदीद नफरत है, या मेरा भाई कभी मेरी बात सुनता ही नहीं, या मेरा भाई बहुत annoying है, या मेरी बहन बहुत फलाना फलाना है. and then there's this best friend who जिसमें वो तमाम चीज़ें होंगी जो बहन भाई में होंगी, लेकिन चूंकि वो best friend है तो बस वो that's up to the bar. Okay, coming back, the point that I was trying to say was be very smart about the kinds of books that you are giving to your children. एक स्टेज तक ना आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप किस तरह की रीडिंग दे रहे हो. आपको बुक शॉप पे बच्चे को लेके जा रहे हो या आप ऑनलाइन कोई बुक चूज़ कर रहे हो, तो आपने चूज़ कर लिया, आपने पहले कंटेंट रीड कर लिया, आपने चूज़ कर लिया कि कौन सी 4 या 5 बुक्स हैं जो आपको लगता है कि बच्चे के लिए अच्छी हैं. देन फ्रॉम दैट 4 or 5 यू गिव देम द चॉइस. अच्छा ये 4-5 हैं बेटा, आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, आप सेलेक्ट कर लो. दैट गिव्स द चाइल्ड एन ओनरशिप. इट सेज लाइक वाओ आई एम सेलेक्टिंग माई ओन बुक्स. Yes, and then they're excited to read it and then they love reading it, and even if that story is not as such good, क्योंकि उन्होंने वो select किया है, क्योंकि आपको पता है कि उसके morals अच्छे हैं, they will love it. अच्छा, बच्चे की मिजाज के हिसाब से अब supposedly you are very particular about teaching them science. तो आप जी उनके लिए बुक्स लोगे कि जी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, तो आपने उनके लिए ले ली जीनियोलॉजी पे किताब ले ली और बोन्स पे किताब ले ली और आपने उन सर्कुलेशन सिस्टम पे किताब, बॉडी पार्ट्स पे किताब ले ली. वो बच्चा नहीं किताब खोलेगा, मैं आपको गारंटी करके कह रही हूँ. अगर वो बच्चा, कैन यू शेयर बुक लिस्ट अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, गूगल करके शेयर कर दूंगी.
because देखें, I mean, I'm sorry, I just saw that message popped up, so yes, I can. I mean, there are libraries all around the world जो आपको book lists जो होती हैं वो online आपको दिखा देती हैं. But मेरा personal experience ये रहा हुआ, especially living in the States, because haya is not a part of their authors' literacy writing. मैं ये नहीं कह रही, but there are very staunch Christians and there are very staunch Jewish people जो हया के कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं, लेकिन राइटिंग में हया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना नहीं है. सो ऑल्सो प्लीज़ बी केयरफुल कि जब आप ऑनलाइन बुक्स लिस्ट देख रहे हैं तो उन बुक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बिकॉज एट द एज ऑफ 12 दे आर टेलिंग योर चिल्ड्रन अबाउट अल्कोहल एंड अबाउट थिंग्स जो कि मैं ये नहीं समझती कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बताने का तरीका होता है, कोई बताने का तरीका होता है. खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर बच्चे, मैं बता रही थी कि अगर आपका शौक है कि बच्चे को बायो में इंटरेस्ट हो जाए तो आप बच्चे को कहेंगे जी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं और आप उसको ह्यूमन बॉडी और उसकी वर्किंग और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बुक्स ला के दे दें, पर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो बच्चा वो किताब नहीं खोलेगा. लेकिन अगर उसी बच्चे का शौक और ध्यान ट्रक्स की तरफ है, एयरप्लेन्स की तरफ है या किसी ऐसी चीज़ की तरफ है और उस पे आप उसको बुक्स ला के देंगे तो वो डेफिनेटली बुक्स खोलेगा. अच्छा, बुक्स जो हैं ये तो मुझसे तकरीबन आप सब एग्री करेंगे कि जिस बच्चे को बुक्स का शौक हो जाता है ना, उस शख्स को ना फिर गेम्स का शौक इतना ज़्यादा उसको तंग करता है. मैं ये नहीं कहती कि उनको शौक नहीं होता, वो होता है ना, मतलब कि स्क्रीन टाइम का भी शौक होता है. बट इफ़ यू टेक दैट अवे फ्रॉम देम एंड दे हैव टू मैन्यूवर अराउंड, स्पेशली कोविड की सिचुएशन में, यू विल सी दैट अ रीडर कैन एंटरटेन देमसेल्व्स फॉर आवर्स एंड आवर्स. और वो आपको बार बार आके ये नहीं कह रही होगी मैं बोर हूँ. उसने अगर बुक एक दफ़ा ही पढ़ी है ना, अब उसको पता है उसके पास करने का कोई काम नहीं है, वो बुक सेकेंड टाइम भी पढ़ लेगी, थर्ड टाइम भी पढ़ लेगी. And that's not normal for every household, but it's something doable, it's something that we can strive for. Okay. मैंने जैसे कि पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि किड्स, बच्चों को 5 साल की उम्र में फर बुक पढ़ना आ जाए. प्लीज़ 7 to 8 to 9, sometimes even 10 years तक. अल्लाह ने हर किसी का दिमाग खूबसूरत बनाया. इस बात को हम सब जानते हैं कि अगर मुझे या आपको सिलाई कढ़ाई नहीं आती तो हमें डेफिनेटली कुकिंग अच्छी आती होगी, और अगर हमें कुकिंग और सिलाई कढ़ाई दोनों नहीं आती तो डेफिनेटली हमें लिखना अच्छा आता होगा, और अगर हमें लिखना अच्छा नहीं आता तो शायद हमें बोलना अच्छा आता होगा, हमारी सोच अच्छी होगी, हम कोई और अच्छा काम कर सकते होंगे. बच्चे बिल्कुल ऐसे ही हैं. अगर बच्चे को उस स्टेज पे, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से जिसके ये मार्कर किसी और डॉक्टर ने और साइंटिस्ट ने आपको दिए हुए हैं, चूंकि ऑफ कोर्स वो रिसर्च बेस्ड है, उस पे बच्चा अगर नहीं उतर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि there is something wrong with your kid. There is something that we need to learn. Please इस चीज़ को समझें. There is something that as parents, as mothers, as teachers, as mentors, as aunts, as elder sisters, we need to learn कि हमने इसको किस तरह से available करना है उस बच्चे के लिए. बच्चे का कोई कसूर नहीं है अगर बच्चे को टूल्स नहीं दिया, और सारा कसूर हमारा है अगर हमने सीखने की जसारत नहीं की, समझने की जसारत नहीं की, अगर हमने अपने सोच को क्यों से आगे बढ़ाया नहीं. क्यों जानना ज़रूरी है, हम अटक जाते हैं क्यों पे कि क्यों ऐसा है, लेकिन फिर उसके आगे भी सोचें फिर अब क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और क्या अवेलेबल है और इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, और फिर हम एक बहुत काइंड एम्पैथेटिक मुआशरा कायम करेंगे, क्योंकि उस बच्चे को याद रहेगा कि मेरी टीचर ने मेरे लिए एफर्ट की, मेरी माँ ने मेरे लिए एफर्ट की, मेरे बाप ने मेरे लिए एफर्ट की. वो जो एफर्ट है ना वो काइंडनेस है, और वो करने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, और अल्लाह ने हमें वो तौफीक दी है, बस अगर हम समझें और जानें और उस पर अमल करें. इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए. अच्छा, फोनिक्स के बारे में मैंने एक बड़ी मज़े की बात सीखी, और ये मेरे ख्याल से दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. उसके बाद एक छोटी सी वो स्टोरी टिप है. तो द फोनिक्स इज़ द लास्ट थिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट, एंड विच इज़, हम लोग सिखाते हैं बच्चे को आ बा ता था जा, ये ज़रूरी है, ठीक है, but there was this whole phonics evolution kind of a thing. आज से 10 साल पहले हमारे जाहिर सी बात है ब्रिटिश सिस्टम से ही आई है वो, और उन्होंने कहा कि जी सबको heavily phonics पे डाल दो, they should know how to say ख ख च च ग ग, right? And when they said that, then the teachers were hampered by the fact कि आपने क्लास में एक वीक तक M ही सिखाना है बच्चों को, और जब तक सारे बच्चों को M नहीं ना आ जाता बोलना, म M मा मी मू, तब तक आपने आगे नहीं जाना. Now then they did that research
Then they did that research that have we developed something, did we get something better out of it? और उनको पता चला कि it's a flat line, कुछ भी नहीं हुआ जब तक कि आप अपने जज़ाकल्लाह खैर. I'm looking, you need books for ages group to 5. Okay. I think we have an author's book club, so our author would be definitely zabardast hongi is cheez ke liye. But inshallah, once I'm off of this live, I can send a few book lists. But I'm telling you, like you, I will Google it. It's not something that I have in my hand or that's something I particularly pick and choose. I can tell you about my taste, but every person is different, and every child's story taste is different. Actually, coming back to the phonics story, the phonics. तो अब करने का काम क्या है? अब मेरे ख्याल से हमारे स्कूल्स में वैसे अब ये हो रहा है और घरों पे हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को लिटरली फोनिक्स सिखा तो रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आप उनको सिखा तो रहे हैं, लेकिन साथ में बुक्स रखें. ये ना करें कि तुमने सिर्फ अल्फ़ाबेट बुक्स ही पढ़ते जाना है. कीप स्टोरी बुक्स अराउंड देम एंड देन व्हाइल दे आर रीडिंग देयर स्टोरी बुक्स यू कैन से आपने आज कौन सा लेटर पढ़ा था? ओ ये देखो इस स्टोरी में रोबोट, ये क्या लेटर है? Oh, robot. It's a phonic, it's a vowel, it's a reading literacy. It's words around us. क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बात कही कि हम wired is the correct lafz. हम mentally wired इस तरह से हैं कि हमारे अल्फाज लिखने से पहले बन जाते हैं और लिखने से पहले हम बोल लेते हैं और लिखने से पहले हम सोच लेते हैं. तो बच्चों को environment दे जहाँ पे वो continuously text देख रहे हैं. The prayer of the merciful for the little ones. अब for the little ones ये लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है, और इसके ऊपर शायद इन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये 3 साल से आपके बाद है. अब इस पे लिखा हुआ है in the name of Allah the compassionate the merciful praise be to God. सूरह फातिहा लिखी हुई है, right? Picture है. The child at kindergarten is not going to be able to read this. सूरह फातिहा आपने शायद उसको ज़ुबानी याद करा दी है, उसका मतलब इंग्लिश में सिखाने के लिए आप उसको ये करा सकते हैं, लेकिन ये बुक आपने पढ़नी है. ये किताब बच्चे ने नहीं पढ़नी, पर बच्चे ने आपको देखना है ये किताब पढ़ते हुए कंटिन्यूअसली, ठीक? और उसके दिमाग में ये पिक्चर्स रह जाएंगे. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसको पढ़ना आएगा तो उसके दिमाग में एक एक लफ्ज़ जो है वो उभरना शुरू हो जाएगा. इट टेक्स टाइम, राइट? फिर उसके बाद आप किसी स्टेज पे आप जाते हो तो आप ना फिर उनको, हम लोग समझते हैं कि कॉमिक बुक्स जो होती हैं ना वो अच्छी नहीं होती, जो ज़्यादातर इलस्ट्रेशन बुक्स होती हैं, राइट? लेकिन समटाइम्स मैं आपको अपने बच्चों की एग्जांपल देती हूँ. माशाल्लाह 14 साल के, 12 साल के, 10 साल के, दे लव कॉमिक बुक्स एंड देयर इज दिस, you have to do your job. You have to pick and choose what you're giving them. You can't give them garbage to read. You have to know कि आप जो उसको दे रहे हैं वो दे क्या रहे हैं, खरीद तो आप ही रहे हैं ना. तो उसको comic books दें, जैसे कि for example, I don't have that book on me, I wish I had. There's this whole history of concentration camp. Actually online, क्योंकि लाइब्रेरीज बंद हुई हुई हैं कोविड की वजह से, तो अब सारी लाइब्रेरीज ने अपनी किताबें ऑनलाइन फ्री कर दी हुई हैं हमारे यहाँ. तो and as a homeschooler, libraries are our best resource, right? तो एक बुक मैंने चूज़ की, that was a whole history of जब पर्ल हार्बर हुआ था यहाँ पे, और जब जापानीज़ अमेरिकन्स को उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया था. अमेरिकन्स ने जापानीज़ अमेरिकन्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया था, और फिर वो जापानीज़ अमेरिकन्स अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप से कैसे निकले और उन्होंने क्या क्या जद्दोजहद किया, वो सारी एक हिस्ट्री है. दैट्स अ पार्ट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, राइट? वो किताब एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पले बड़े बच्चे ने लिखी थी, जो अब माशाल्लाह 70-80 साल के बुजुर्ग हो गए हुए हैं. But he did not tell his story dry. The book was catered towards children and it was a comic illustration book and it was a lovely book. और उसमें historically सब कुछ बताया गया है और एक स्टोरी नरेट की गई है. लेकिन वो जो 10 साल की, 8 साल की जो बच्ची या बच्चा पढ़ रहे हैं, they were so engrossed in it. So pictures are important for a certain age. Please, बच्चे के इंटरेस्ट पे होता है कि कुछ बच्चे पिक्चर से विजुअल लर्नर्स होते हैं, सो लिहाजा दे लव दोस. एंड देन देयर आर बुक्स लाइक दीज व्हिच आर सिंपली बेसिकली प्लेन, इसमें आपको कोई पिक्चर्स नहीं नजर आएंगी. बट इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, जैसे कि सीरीज हैं बच्चों को पसंद होती हैं, इन स्टेजेस तक पहुंचने के लिए हमें किन स्टेजेस से गुजरना की ज़रूरत है? इन स्टेजेस से गुजरने की ज़रूरत है, इन स्टेजेस से गुजरने की ज़रूरत है. और जब तक हमें लगे कि हमारा बच्चा इन स्टेजेस में खुश है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. We have to give our children time to develop at their pace, and we have to be grateful
for the gifts Allah subhanahu wa ta'ala has given our child, and we have to be able to ask Allah subhanahu wa ta'ala and recognize कि Allah आपने ये जो नेमत मुझे दी है, इनायत मुझ पे जो की है, मुझे इसे बेहतरीन तरीके से गाइड करने की तौफीक अता फरमा, और आपसे बेहतर गाइड नहीं हो सकता कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों से सीखेंगे नहीं, या आप दूसरे लोगों से जाकर मशवरा नहीं करेंगे, या आप दूसरे लोगों को कहेंगे नहीं कि मेरे बच्चे को सिखाओ या पढ़ाओ, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे भी नहीं। ये नहीं कहेंगे कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता। नहीं पता, हमें नहीं पता होता। पहली दफ़ा माँ बनने से पहले किसी को पता होता है कि माँ बनने की फिजिकल पेन क्या होगी, या उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम होती है वो क्या होगी? नहीं पता होता ना। वो जो औरत पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होती है और पहली दफ़ा माँ बनती है और जिसके पेट में पहली दफ़ा किक होती है, और वो जो पहला पुश होता है, और वो जो दूध पिलाने का जो एक होल प्रोसेस है वो कितना तकलीफ दे है। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ दे होता है निस्बतन सेकंड लोगों के। जब स्टार्ट करते हैं आप, बस इसी को समझें कि हर स्टेज पहली ही दफ़ा है, और हर बच्चे के साथ, बेशक आपका एक बच्चा है या आपके 10 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द बरका इन योर फैमिली। There is nothing wrong with having more children or having less children. But the thing is, every child is a gift, is an individual. और हाँ, मैं बिल्कुल sympathize और empathize करती हूँ, और मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह हर बंदे, और अल्लाह ने प्रॉमिस किया हुआ है कुरान में कि हर बंदे का टेस्ट उतना ही है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि अभी मैंने जितनी बातें की वो उन माओं के लिए थी जिनके बच्चे उनके लिए इजी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए मुश्किल बना दी, क्योंकि हमें आते नहीं, हमारे पास टूल्स नहीं, हमने अपने आप को सिखाने की कोशिश नहीं की, या हम अपने माहौल से फ्रस्ट्रेटेड हैं, या हमारे हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि हम उससे निकल नहीं रहे। बट अगर हम ग्रैटिट्यूड रखें, जो बात मैंने शुरू में की, कि अगर हम ग्रैटिट्यूड रखें कि मेरे पास तो सिर्फ इतने ही मसले हैं, लोगों के पास ये भी मसले होते हैं। देयर आर चिल्ड्रन हु फॉर देयर एंटायर लाइव्स आर गोइंग टू बी ब्लाइंड। अब मैं उन माओं से क्या कहूँ कि अपने बच्चों को क्या लिटरेसी सिखाओ और किस तरह से सिखाओ, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो एक नॉलेज की अलग ही लड़ी है। जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, अब मैं उन बच्चों को, मैं इस वक्त वो अगर एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ बैठी मुझे सुन रही है, तो मैंने जो कुछ भी कहा है वो उसके से अब रिलेटेबल नहीं है, वो नहीं रिलेट कर सकती। ना इसमें मेरा कसूर है, ना इसमें उनका कसूर है, बट ना उसमें उस बच्चे का कसूर है। वी हैव टू लर्न दीज स्किल्स टू बी एबल टू गिव बैक टू आवर चिल्ड्रन। ये हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आंटी इरम को लेक्चर देने का शौक वो हो जाता है, सॉरी। So that was about it. I will definitely look into the list and post them to you. Sister Aisha, I hope, and everybody else here in the group chat, I hope everybody enjoyed this. Jazakallahu khair. Or if you want to hear more about anything or any discussion topics, please do let Sister Aisha know, and inshallah we can meet up again. Jazakallah khair. मुझे पता है late हो चुका है, and I don't even have a time tracker. पता नहीं कितनी time है. If there's anything anybody else wants to say. अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर सबीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में जाते जाते दुआ कि या रब आपका लाख लाख शुक्र है, और हमें तौफीक अता फरमा कि हम सीखते रहें, समझते रहें। स्टोरी हमेशा कुरान से शुरू करें, ठीक? अच्छा हाँ, जो मैंने लास्ट बात कही, कुरान से स्टोरी शुरू करें, कुरान की स्टोरीज रेपिटेटिव रखें, और कहानियाँ बनाया करें। अब के बच्चे आपके पास आके कहानियाँ बनाते हैं ना, आप भी उनके साथ कहानियाँ बनाया करें। अच्छा, मैं एक कहानी सोच रही थी, और मैं ये, और लर्निंग आपने रखनी है ना। आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ सीखता रहे। हर पेरेंट की ख्वाहिश क्या होती है? बस मेरा बच्चा हर वक्त कुछ सीखता रहे, बस कुछ सीखता रहे, बस ये फारग ना मुझे नजर आए। ये भी वैसे एक फ्लॉ है हम में क्योंकि हम समझते हैं कि सीख वही रहा है जो एक जगह पे बैठा किसी चीज को देख रहा है। नहीं, सीख वो भी रहा होता है जो खेल रहा है, जो उछल रहा है, जो कूद रहा है, जो धर्म बरम कर रहा है घर के आपकी सफाई सुथराई को, जो किचन में जिसने हंगामा मचाया हुआ है, वो भी कुछ सीख ही रहा है। बस सीखने के तरीके अलग हैं, जैसे समझने के तरीके अलग हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Until next time. Oh, also a little bit of shameless advertisement. Please go visit my website and my YouTube channels, and inshallah, see you next time.